Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Before starting today's topic, I want to make a request to you all. If you are understanding the concept well here with me and you are motivated at the same time on this platform because I am trying for the same also. So please subscribe, like, comment, share more and more to motivate me. Now, one motivational thought for you, right? कि आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। यानी कि अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, यानी कि आपने रास्ता बना लिया, तो मंजिल भी मिल जाएगी, तो आप ज़रूर आप उसमें कामयाब होंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। हौसलों से भरी ये कोशिश, जो ये कोशिश आपने की है आज पढ़ना शुरू करने की, उसको गिव अप नहीं करना, उसके साथ हौसला हमेशा बना के रखना। तो हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन, ठीक है, ज़रूर रंग लाएगी, आपके रिजल्ट पे आपको ज़रूर खुश करेगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने आपको लिबरलाइजेशन कंप्लीट कर दिया था। आई कंप्लीटेड द व्हाई डू वी नीड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड द two measures, stabilization measure and structural measures of new economic policy, which is also important for 3 marker or for MCQ point of view, right? Now liberalization also I completed, meaning and in different areas, in different fields, what relaxation was given by the government as per the new economic policies, right? Now today my topic is, as it is written on board, which is what? Privatization, right? Privatization here, first of all, what you are going to study under this topic, privatization. Here privatization, what does it mean, meaning, right? And here what are the two ways here of privatization, how we can do the privatization, right? What are the two ways of privatization? और थर्ड है, what was the purpose behind the privatization, ये क्यों किया गया था, what were the objective behind the privatization. और फिर उसके बाद कुछ कंपनीज जो PSUs कंपनीज हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, उसका ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. This is all about the second feature of new economic policy, privatization. So let's start with the meaning. What is privatization? Privatization means transfer of ownership, management, control, right, of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector. जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में प्रोडक्शन यूनिट है, उसका कंट्रोल, उसकी ओनरशिप, उसका मैनेजमेंट किसको ट्रांसफर कर देना, किसी प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर को ट्रांसफर कर देना. दिस इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन, ट्रांसफर ऑफ हियर ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल of PSU, public sector enterprises, to the enterprises in the private sector. This is what is known as privatization. अब आ जाइए कैसे करेंगे इसको. What are the two ways of doing privatization? पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल किसको ट्रांसफर करके, प्राइवेट सेक्टर को. पूरी यूनिट किसको ट्रांसफर कर दी, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर को सेल कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया. तो ये क्या, अब ये ओनरशिप किसके हाथ में आ गई बच्चों, प्राइवेट सेक्टर के. तो दिस इज व्हाट प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. दूसरा तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, कि ए पार्ट ऑफ इक्विटी once is sold by the public sector to the private sector, but the control remains still in the hands of public sector. public sector के यूनिट अंडरटेकिंग्स है, उस PSU की कुछ इक्विटी, ए पार्ट ऑफ इक्विटी
is sold by government to the private sector. This is known as disinvestment, and it is also known as the privatization. So what are the two ways of privatization? Now what is the purpose of privatization? प्राइवेटाइजेशन का बच्चों पर्पस क्या है? आपको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे वो क्या लॉसेस में आ गए थे, ठीक है, लॉसेस में आ गए थे, उनकी एफिशिएंसी डाउन हो गई थी, राइट। अब उसको प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करने के पीछे ऑब्वियसली क्या रीजन रहा होगा? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, right, to improve the efficiency of these undertakings, right, by giving their ownership in the hands of private sector, right. तो पहला था आपका purpose here, that is to improve the financial discipline, मतलब जो लॉस में आ गई थी वो कंपनीज फिर से प्रॉफिट में आ जाए, राइट, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यही पर्टिकुलर वर्ड लिखने हैं आपको, राइट, if you want to get full marks in your answers, right. Next purpose था to facilitate modernization, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर बच्चों अगर ओनर है तो ऑब्वियसली वो क्यों प्रोडक्शन कर रहा है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज, नॉट फॉर सोशल वेलफेयर, और टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट दैट ही विल द कंपनी विल यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट, and that is the step towards the modernization. क्योंकि what is modernization? I taught you the adoption of advanced technology in production and you know that change in the social outlook of the people. दोनों क्या modernization है? तो इसमें क्या होगा? जब advanced technology को use करेंगे private sector, ठीक है, this is what modernization, right, to enhance the efficiency to generate more profit. They will use the advanced technology based machine without taking care of employment. तो क्या होगा आपका जो कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, they could generate the profit, right, and they will come out of crisis, right. तो ये पर्पस था, पहला पर्पस था टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और सेकंड पर्पस था मॉडर्नाइजेशन, राइट। किसके पीछे बच्चों? प्राइवेटाइजेशन के पीछे। जैसे कि गवर्नमेंट के अंडर में जब वो कंपनीज थी वो लॉसेस में आ चुकी थी, प्रॉपर फॉलो अप नहीं था, जॉब सिक्योरिटी दी हुई थी, बंद कर नहीं सकते थे, तो क्या हुआ कि सारी कंपनीज क्या बन गई थी? लायबिलिटीज बन गई थी बच्चों, इन स्पाइट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट ने फिर प्राइवेट सेक्टर को दिया ताकि उनकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो, राइट, मॉडर्नाइजेशन हो, ठीक है, और क्या हो? दे कुड जनरेट मोर प्रॉफिट, राइट, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन. दैट वाज द पर्पस बिहाइंड द हियर प्राइवेटाइजेशन. अब आ जाइए कि आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यू नो दैट कि फ्यू undertaking public PSUs and were running in good condition. Not all the companies of government came in losses, right? Few public sector undertakings were generating profit. They were running in the good condition, right? So to motivate these companies which were generating profit, right, generating revenue to the government, so to motivate them, these companies were entitled by the Navratnas, mini Navratnas, Mahanavratnas, इस तरह के उनको टाइटल दिए गए और उनको क्या दिया गया? ऑटोनॉमी दी गई, किसमें? अपने डिसीजन लेने में, ठीक है। पहले हर डिसीजन PSUs में कौन डिसाइड करता था बच्चों? गवर्नमेंट. लेकिन आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज द कंपनीज PSUs which were running in profit, right, generating revenue to the government, they were given some autonomy, freedom to take their own decision, managerial decision, right. तो क्या होगा कि जब वो कंपनी खुद से डिसीजन लेंगी तो किसके लिए लेंगी? सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और उससे क्या होगा? कंपनी की ग्रोथ होगी बच्चों, राइट। तो कुछ कंपनीज को ऑटोनॉमी भी दी, ठीक है, टू टेक देयर ओन डिसीजन, और उसके साथ साथ उन्हें कुछ टाइटल से भी उनको एक तरह से एनकरेज किया, मोटिवेट किया
क्या नाम दिए? नवरत्नास। पहले 9 कंपनीज जो कि नवरत्नास बोले गए, फिर महानवरत्नास जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट, राइट। फिर उसके बाद मिनी नवरत्नास, इस तरह से करके उनको टाइटल दिए गए। और 2002, राइट, 2002 में, सॉरी 22 में, 2022 में कितने आपके महारत्नास थे? 11 नवरत्नास थे, ठीक है। और कितने नवरत्नास थे? 13 नवरत्नास थे और 74 मिनी नवरत्नास थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, नवरत्नास कितने थे? 11 कंपनीज, 11 PSUs को किसका नाम दिया गया? महानवरत्नास। 13 PSUs which were running huge profit, they were entitled by the name of Navratnas. 13 PSUs. 74 PSUs were entitled as mini Navratnas as per 2022, right? तो ये आपका 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे कंपनी का, इसमें कंपनी के नाम कुछ जो बुक में दिए हैं आपको एनसीईआरटी, वो आप अच्छे से याद करेंगे। उस कंपनी का नाम दे के बच्चों पूछा जा सकता है आपसे कि ये मिनी नवरत्ना है, नवरत्ना है या महानवरत्ना है, ठीक है। तो उस एनसीईआरटी में जितने भी कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है आपकी? महारत्नास है, राइट। इसके साथ ही स्टील अथॉरिटी इन इंडिया लिमिटेड, ये भी क्या? महारत्नास है, राइट। इसके बाद नवरत्नास में कौन सी दी हुई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, राइट। एंड द कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? नवरत्नास में दिया गया है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, एंड द एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपका किस में दिया हुआ है बुक में नाम? मिनी नवरत्नास का। इससे बाहर, बुक से बाहर नहीं, जनरली नहीं पूछते हैं, पूछने को पूछ भी सकते हैं लेकिन जनरली नहीं पूछते हैं। तो ये जो आपकी कंपनीज है, इस पे MCQ बच्चों पूछा जा सकता है। तो आज सिर्फ इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन, पहले मैंने बताया क्या है ये, दूसरा मैंने बताया कैसे किया प्राइवेटाइजेशन, तीसरा बताया इसका पर्पस क्या था, और 4th पॉइंट आपको कुछ PSUs डिस्कस करी जो कि डिफरेंट नेम से थी और उनको कुछ ऑटोनॉमी दी गई टू टेक देयर ओन डिसीजन टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट, राइट। और उसको पहले जब नवरत्नास को टाइटल दिया तो बाकी जो कंपनीज थी PSUs which were running in profit, they also started taking more efforts, right, to be entitled as Navratnas, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? एफिशिएंसी, कंपटीशन, कंपटीशन से क्या बढ़ती है हमेशा बच्चों? एफिशिएंसी। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ एफिशिएंसी कंपटीशन था, और PSU में भी एक दूसरे के साथ जब ये एंटाइटल दे दिया, ठीक है, कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे क्लास में आपको देते हैं, तो क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी बच्चे भी, जो सेकंड है वो कोशिश करेगा फर्स्ट, जो थर्ड है वो सेकंड, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 3 रैंकर, फर्स्ट 10 रैंकर्स। तो ये कंपटीशन ऑलवेज इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, और इस तरह से PSU की जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू, बी गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग।